10 reasons why we use this classroom. Easy to learn, very little training required, very easy, everybody is using. Intuitive, clean design, keep work organized for student, full integration with Google Drive. As I told you, everything is stored in the Google Drive. There is a folder called Classroom. Every file, each and every assignment is stored in that classroom. Simple way to get started with creating a paperless classroom. Yes, we are not using paper. Now it is a paperless classroom. Enhance communication with student directly. Students avoid talking to teachers sometimes due to fear, due to the shyness and all. But here students are very free. They can communicate with teacher, whatever it is. Files are automatically duplicated for each student. Like each copy can be given to the student. I will be showing you how. Integrate well with the iPad. You can use iPad with the Chrome browsers. It is Google product. Expect continued improvement every time a new update comes, and Google Classroom keep updating itself. Allow you to focus on teaching and learning, not technology. So let's start how to create a classroom. I hope everybody knows. Let me present the complete screen. So to go for a classroom, we have to log in with our account. That is very clear. Everybody knows that. Okay. Now, going from this 9 dots, this which is called waffles, we click here and get a classroom here. When you have to create a new, you will go to this plus sign. You will click on this plus sign. There are two options. For student, it is join classes. For teachers, it is create classes. Like we are teachers, so we will click on create classes. So this is where we set the nomenclature. We write the name of the class or the teacher's name along with the classroom as we do it. So I am writing Smita. My classroom name is Demo. Wait, I will start with demo because demo class bracket Smita. Now section, whichever section you are dealing with, you can go with the section. Subject, whichever subject you are dealing with, you can write the subject. And room, you can write the same as subject you have written there. And you can create your classroom. Will take few minutes. Yes. Now my demo class has been created. I hope my voice and picture is both are clear. Okay. Now after creating, if you want to change this picture, you want to customize it, this header. So you can click on customize. If you have any photo, you can upload it from here. If you have it on your system, or you can create it through Canva also. Many animated headers are there in Canva. You can take it from Canva also, or you can select it from the library of Classroom. You can select any header which you want. If it is related to subject, you can select it from here. Whatever it is, it's your choice and you can select. So your theme will be changed. Whatever theme color you want of the classroom, you can change accordingly. Now, changing the theme, you will get all the things written in purple color. Can you see here if I have changed the theme? If I take it pink, everything will be written in the pink color. So this is how the theme is changed. Now here, when you create a new classroom, you have to generate a link for the student for Meet. So when you generate a link, then the option will come join and you can join the classroom. And you can send this link also to your, by copying to your student also. And if you want to change, you want a new this link, you can reset it or you can remove it. So it's on your choice. Save it
and make it visible to student. Now this link is visible to student. Anybody who is there in the class can easily click on this and can join. Now class code, this is also an option from where a student can join. From here also student can join. You can copy the class invite link and you can send to the student. They can join the classroom from here also. Class code, by the class code also they can join. In student also, when you click on join classroom, it will ask to write the code. So you can give the code and student can join. You can reset also code, and if you don't want your children should see or pass it to any other student, you can turn off this link. So nobody can see this code. And if unless and until you give a link code, they will not get code to join. Now coming to the classwork. This is the stream section where we give the announcements here. This announcement setting is also been done when we go to the setting session. If you come here, you can see that stream section. There are three options here. Student can post and comment. Student can only comment. Only teachers can post or comment. So announcement can be done three ways. आप चाहते हो कि आप भी पोस्ट करो और आपके बच्चे भी कमेंट पोस्ट करें, तो you can go for student can post the comment. Student can only post the comment. सिर्फ student post करेंगे comment. Only teachers can post the comment. तो सिर्फ teacher post कर सकते हैं. Because this is the announcement mode, so we keep out only for the teachers. क्योंकि बच्चे फिर good morning teachers, good morning ma'am, कुछ भी message, I have done my work, आपके announcement में डालेंगे. So your importance of doing the announcement will be gone. So इस चीज को हम setting में रखते हैं. Only teachers can post the comment, and you can save this. So this is the stream area. If you want your all the classes where you teach, you take classes, you want the same announcement to go in all the classes, you have to select the classes here. If I want this announcement should go in 6th B also, 6D also, 6F also, 6G also. In all four sections, I want the announcement to go along with my demo class. So I will select this from here. This is the checkbox. From here, I will select, and the information will go in each class, whichever is selected. If you want to select the students also, you can select the student also. If you don't want all student to go there, so you can send the student also here accordingly. Announce something to your class. If I say classes are ready. So class is ready. You want to change the text here. You want it bold, you want it italic, you want underline, you want it with the dot there. You can use there. You want a strike off just to pay the attention of your student. So you can use that. If you want to attach any document from the drive, you can use this and attach something from the drive. It can be picture, it can be anything. So you can attach it from here. If you want to upload something, you can upload from your computer. You can browse it from here and you will get any of the picture and you can upload it. It can be file also. If you want a file, you can upload that file also. You can send some link. If you want to send a video link, an image link, a website link, you can send it to 3. From here, you can send the YouTube video link also, and you can post it from here. If you don't want to post, you can schedule it, you can draft it. Scheduling means you can schedule when to be posted. So set the timing, set the date, and post it. And if you don't want to post it right now, you can save it as a draft and you can post it later on. So this was your stream section. Then coming to the classwork. Now when we come to the classroom, we get a Meet option link here. From here also children can join the Meet. From Google Calendar also they can check whatever their planning is. If the setting is there accordingly, they have their Google Calendar of the class. They can appoint it, and even you can set
योर क्लास स्लॉट्स फ्रॉम हियर. अगर आपको मीट लिंक यहाँ से सेट करनी है, यू कैन सेट योर मीट लिंक. इट वर्क्स normally as your calendar works. Then your drive folder where everything is stored. classroom का जो folder है वो ये है. यहाँ पे इस classroom में अभी मैंने सिर्फ एक फोटो पोस्ट की है. You can see here, उसमें एक classroom नाम का folder है जिसके अंदर डेमो क्लास एक folder है. उस folder के अंदर ये फोटोज चली गई. You can check it from here. Now coming to the classwork. Now can you see this plus sign? When you create, first of all, first thing what we do is we create a topic. हम टॉपिक बनाते हैं यहाँ पे just to organize the class. हमारी जो भी टॉपिक्स होती है, अगर मेरी हिंदी की क्लास है तो हिंदी में मुझे कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना है तो उसके लिए हम अलग अलग टॉपिक बनाते हैं. As you must have seen in my classroom, this is all organized. If topics are not given, you cannot trace out where the links are there. बिना टॉपिक के अगर मैं एक साथ सारी चीजें डाल दूं तो आपको चीजें खोजने में बहुत मुश्किल होगी. So topics are there for children just to recognize the things. Give me 1 minute. Okay. So classroom topics are just to organize the classroom under which topic the assignment will fall. So you can add the topic information gallery. So this topic has been added. Now coming, ये एक टॉपिक हो गई. अब मुझे कोई भी असाइनमेंट देना है. असाइनमेंट मीन्स व्हेन यू वांट समथिंग फ्रॉम स्टूडेंट. असाइनमेंट हम तब देते हैं अगर हमें बच्चों से कोई चीज नहीं चाहिए, जस्ट इंफॉर्मेशन हमें देनी है, तो वी यूज दिस मटेरियल ऑप्शन. जहां पे हमें बच्चों से कोई भी फाइल सबमिशन नहीं चाहिए, कोई इमेज सबमिशन नहीं चाहिए, तो हम मटेरियल के रूप में उसको पोस्ट करते हैं. In case we want something to be submitted, turned in by student, so we take assignment. जब हम assignment में जाते हैं तो we have to give title. Is it a question answer which you are giving? तो question answer के साथ हमने यहाँ पे instruction दे दिया. हमने कहा यहाँ मुझे question answer की topic मुझे देना है तो question answers देना है. यहाँ पे हमने दे दिया submit your notebook screenshot, or in the PDF form also they can submit. In case you want to attach the question answer which you have prepared in the Google Doc, you can use it from the drive. You can select any of the doc from there. My drive, you have the drive, you select it, whichever folder you have kept anything, you can take it from there. If it is a class 6 work, you can take it from class 6 and you can post it. वो अलग अलग फोल्डर में है. आपने जैसे ऑर्गेनाइज किया हो, like yesterday I have told you how to organize your drive. So you can take it from your drive and you can post it. It's taking time. Let me check something. Okay. So here is a graded assignment. I selected it and inserted it. Now this is posted. If you want to upload something which is in your computer and you want your children to see that and upload the same drawing there, अगर drawing की बात हम करते हैं, so you can go for browse and you can take some drawing, whichever drawing you have done. I don't have right now any drawing. So you can take any image if you want your children to take it. I have taken an image. In case you have downloaded any picture and you want your child to see, say I am opening an image or file. If you want, you can download that file and
You can see here. Let me take any picture. चलो सेव इमेजेस, मैंने यहाँ पे सेव कर लिया image 1. This is saved. Now you can see it is downloaded here. Now I'm coming back to the classroom where I have to post. मुझे यहाँ create करना है. This is the classroom. मैंने upload पे click किया. I have the browser here. मैं यहाँ पे picture यहाँ से drag करके यहाँ drop कर दूंगी. Then also it will be uploaded. See, the picture is here. Now, when you upload your assignment, you want your student to only see the file, view the file. You can go for it. You want all the student to edit. अगर collaborative work है, you want all the student to edit there. You can give the editing permission. If you want, each copy should go to each student. This copy can be copied and go to all the student, one copy. So you can take it as make a copy for each student. And it will go to each student, whosoever is there in your class. Then from here, you can select the classroom in which class you want. You want in the multiple class, you can select whichever classroom, class section you have to select. If you want only 10 students to take the assignment, as I have no one in my classroom here, so all student it is showing. If I would have more than one, so यहाँ पे अलग दिखाता. Let me show you. मैंने जैसे ये असाइनमेंट आपका पोस्ट किया था, this is not been posted. ओके, मैं ये सर्टिफिकेट वाला पोस्ट कर दे रही हूँ. ठीक है, ये मैंने बनाया है. ये अचीवमेंट फॉर्म है. जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाए तो आप दे सकते हो. अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जब मैं स्टूडेंट पे क्लिक करती हूँ तो यू कैन सी यहाँ से मैं डीसेलेक्ट कर सकती हूँ किसी को भी. आई डोंट वांट ऑल माय स्टूडेंट टू टेक दिस. few student those who have submitted the mock test, only for those it can be sent. तो मैं यहाँ से नाम सेलेक्ट कर सकती हूँ and I can send. So this is how you can take it. मैंने अभी ड्राफ्ट करके रखा हुआ. I will see accordingly. जैसे जैसे जो काम कर रहे हैं उसको मैं ये फॉर्म पोस्ट करूंगी. Then after this, you have points. If you want your assignment to be ungraded, जहाँ पे ग्रेड नहीं देना है, you can keep it ungraded. If you want, you can give the marks also accordingly. If the question paper is there or any assignment is there that is of 10 point, 25 points, you can assign the point over here. Due dates, you can give the due date here when you want your student to submit that assignment. Date and time both can be set. At 16th, I want my student to submit my assignment on 24th. I can give, and then I can set the timing also. Which timing I want, I can set it from here. Now topic, this topic should go, this assignment should go in under which topic. So I have only created one topic, so it is only showing one topic. You create from here also a topic. मैंने एक टॉपिक यहाँ पे क्रिएट कर दिया and I have assigned my things. So you can see this is assigned. Those whoever will join this classroom will get this question paper with pictures and all. So this was the assignment. And whatever topic you are creating, on the left side you can see the topics. Then after coming to people, this is where we invite teachers. जो मैंने teachers roster कहा था, this is where we invite teachers. So we can send invite. Already जो हमारे usually जो mail में होते हैं वो IDs यहाँ पे दिख रहे हैं.
In case you want somebody else, you can invite, like I am sending an invite to Ishan sir from my demo class. You can see from here. Ishan sir is not here in my class because he is from my school. I will simply type Ishan Chaudhary. It will take. In case of student, we have given a specific email ID. उनको ID दिया हुआ है with the registration number and all. So you can type that and you can invite your student. So now you can see that Ishan sir has been invited here. Ishan sir, if you are on the laptop, you can show your classroom. Ishan sir, are you there? Am I audible? You are audible. Can you present and show your classroom screen? I have sent just now the invite. How it looks on your screen? Right now I'm not through my laptop, ma'am. Even from the mobile you can show, sir. Okay, sure, ma'am. Sure. Just go to classroom. I've joined, ma'am. मुझे वैसे ही दिखाना था सर, प्रेजेंट करके. Okay, okay. ज्वाइन ऑप्शन आ रहा है. Okay, okay. अब तो आपने ज्वाइन कर लिया तो वो ज्वाइन ऑप्शन नहीं दिखेगा. सो व्हेन वी सेंड इनवाइट, स्टूडेंट गेट्स ज्वाइन ऑप्शन एज यू ऑल आल्सो हैव गॉट द इनवाइट. और आपने भी उसी तरह से लिया था. आराध्या मैम इज हियर? नो, आराध्या मैम इज नॉट हियर. So she is also not there in the class. I have sent an invite on the WhatsApp chat. Okay, now I'm presenting again the entire screen. So this is how you can add any teacher here as a colleague. You can add all the right. The teacher, you are the owner of the class. You get all the rights. When you add your colleagues there, they get also the same right. But सिर्फ they cannot delete this classroom. सारे rights उनके पास होते हैं. They can post the assignment, they can modify the assignment. आपके भी assignment को वो touch करके वो use कर सकते हैं. लेकिन इस classroom को वो delete नहीं कर सकते. सिर्फ एक उनको authority नहीं होती है. ये authority उन्हीं को होती है जो owner होते हैं इस class के. ठीक है? Then after adding we come to grades. This is grade option. मैं यहाँ से grades दिखा रही हूँ दूसरे classroom का. You can see here I have given many assignments. यहाँ पे practice assignments दिया है and this is the grade looks. जब मैं this assignment was given out of 25, so it is mentioned. जब मैं यहाँ पे marks दे के return कर दूंगी, the marks will also be reflected here. Conditional formatting, this child has not done the assignment, so it is showing here missing. जिसने किया है उसका turn in दिख रहा है, जिसने नहीं किया है उसका turn in नहीं दिख रहा है. From here you can check the gradings. Now going to setting. Setting I think we have done. Stream था, then link also you can reset. If you have seen that your children have a problem with the link, तो आप चाहते हो कि हर दिन मैं नया link दूं, you can reset the link from here. Then if you have created the rubrics, तो आप rubrics भी यहाँ से set कर सकते हो. This is not under level 1, so I'm not going deep into it. Yes, Ishan sir? Ma'am, can we change the ownership in the classroom? Of course we can set the ownership. We can change that ownership. अभी हम लोगों ने ownership change किया है. Okay, ma'am. Okay. Yes, we can change the ownership. Okay, so this was all for the classroom. Joining I have told you how to create it,
I have told you how to add co-teachers and the student. Setting up the stream also I have told you. Classwork, grading, question answers, how to post questions I have already told you. How to see the grades I have told you. This was all for the classroom. Any question? Yes, Deepti ma'am. गुड इवनिंग स्मिता मैम। मैम आपने जो Good evening. पिक्चर डाउनलोड करने के बाद ब्राउजर से ड्रैग किया था वो मुझे एक बार फिर से समझाएंगे? Sure, ma'am. I'm going again to that demo class. This was my assignment which I have given. I'm going to edit. ठीक है, मुझे यहाँ पे कुछ चीज प्रेजेंट करिए। मैम स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही है। Oh, sorry. Give me 1 minute. Okay. So let me come back. This was my assignment. मैंने इसको edit किया, ठीक है। अब इसी में मुझे एक पिक्चर डालनी है। यहाँ से मैं अपलोड फाइल्स में गई। यहाँ पे मैंने डाउनलोड करके पिक्चर रखा हुआ है। बस उस पिक्चर को क्लिक कीजिए और ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दीजिए। See, it is there. ऐसे ही कोई भी फाइल भी, अगर आपने कोई फाइल डाउनलोड की है, मान लीजिए मैंने यहां से एक फाइल डाउनलोड किया, ये मेरी फाइल है, मैंने इसको डाउनलोड किया एक्सेल में। ये फाइल डाउनलोड है, मैंने यहां से अपलोड किया, मैंने ये फाइल को ड्रैग करके यहां ड्रॉप कर दिया। नाउ दिस फाइल इज हियर। आप डायरेक्टली भी अपलोड कर सकते हो। आप यहाँ से क्लिक करोगे, ब्राउज करोगे, आपका गैलरी खुलेगा। दिस वाज द शॉर्टकट। आपने जहाँ पे भी अपनी फाइल रखी होगी, डाउनलोड्स में होगी, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम, चेक फ्रॉम हियर, टेक इट हियर एंड ओपन इट। यू कैन डाउनलोड दैट फाइल, अपलोड दैट फाइल। सो अगेन दैट फाइल इज बीन अपलोडेड। ठीक है, यस मैम। ये गैलरी से जाकर तो पता था मैम, लेकिन आपने जैसे ड्रैग किया तो वो वाला मुझे नहीं पता था, वो आज देखा है मैंने आपसे। ठीक। थैंक यू मैम। नाउ दिस मच इज ओके। कैन आई मूव टू गूगल डॉक्स? मैम जस्ट वन डाउट मैम, वो एक बार ग्रेड्स वाला दिखा दीजिए। ग्रेड्स वाला, ये मैं कोई भी अपना क्लासरूम खोल रही हूँ मैम। दिस इज द ग्रेड सेक्शन। नाउ कैन यू सी हियर, मेरे जितने बच्चे हैं, मैंने जितने असाइनमेंट्स दिए हैं, एवरीथिंग इज हियर। हर एक बच्चे का आपका पूरा ग्रेड है यहाँ पे। एक बच्चे को क्लिक करेंगे आप, यू कैन सी वॉट एवर थिंग ही हैज और शी हैज टर्न्ड इट, और कितना असाइन है, उसने काम नहीं किया है अभी। सो यू कैन चेक आउट। क्लियर है? Any doubt now, ma'am? No ma'am, let us proceed further. Okay. If you have given the marks here, you can directly return all the assignments from here also. जैसे एक एक करके हम रिटर्न करते हैं, आप यहाँ मार्क्स दीजिए, एक साथ रिटर्न कर दीजिए एडिट करके। स्मिता मैम, चैट बॉक्स में क्वेश्चन आप देख लीजिए। मैम का माइक नहीं काम कर रहा, रोशनी मैम का। ओके। When we enter marks, it will be back, मैम। आप रिटर्न नहीं करेंगी तो आपके मार्क्स नहीं दिखेंगे पेरेंट को। When you are returning back, तभी आपको मार्क्स दिखते हैं। आप डाल करके छोड़ दीजिए उसमें, एंड रिटर्न ऑल टुगेदर। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू गूगल डॉक्स। So how to create Google Docs, how to share, how to collaborate, provide feedback with comment, and suggest edit in docs.
direct comment to specific user, add links to comment, access version history and revert to earlier version of Google Doc, review group contribution with comment and version history. And one more thing is there is citation that is missing here. ठीक है, तो सबसे पहले क्रिएट करने की बात आती है. Let me present my entire screen so that you can see the Omnibox also. Now I'm moving to the new tab. Okay, so there are three ways to open Google Doc. One is you go to Wofel, select the doc, and new doc will be open. The other way is Omnibox में जाइए, docs.new कर दीजिए. You will get a Google Doc open, a new Google Doc open. ठीक है. तीसरा आपका है, you can go to Drive, you can click on plus sign and you can click on Google Doc. So there are three ways you can open your Google Doc. Now just now I have opened a Google Doc. This is here. Now there are all tabs here. Menus है ये, tabs हैं. Here you get the option to share. Then you from here only you can open a new document. If you have already have a document saved in your Google Drive, you can go and open from here. That open option will be there. You can upload, you can open, you can see the shared file. Then make a copy of it. You can make a copy of this. You want to email this file, whatever this file is, you want to send to somebody. So you can email that. You can download in Word and PDF, plain text, whatever you need. 1 minute now. ठीक है, coming to Word. Okay. Now download हो गया, make available offline, rename publish to web. फिर publish to web जो option है, जब आप कोई चीज किसी को देते हैं and you don't want that person to copy or edit anything, you send it in this way. Publish कर दीजिए web में, you will get a link and you can use it. अभी देखा होगा मैंने आप लोग को जो day 1 का reading material डाला है. I'm coming to my classroom. First day का जो मैंने guiding material डाला है, if I am opening this guiding material, you can see you are not getting any menu to copy it. आपको कॉपी करने के लिए कोई मेन्यू नहीं दे रहा है, आपकी कोई चीज को कोई छेड़ नहीं सकता है, and not even the person can download anything. Can you see? So this is published link. If you want someone not to copy the things, you can send it in this way. Is it clear? Am I audible? Okay. Yes. Okay. Then coming to the insert part. Insert image. If you want any image to be uploaded, you can take it, you can upload it from the computer, you can search from the web, drive, और image भी हम 3 जगह से insert कर सकते हैं. एक तो यहाँ से है, you can insert the image. दूसरा आपका image insert करने के लिए ये option है, you can insert it from here. And third one is you can explore from here. This is the third form. यहाँ से मुझे dog की picture insert करनी है. मैंने लिखा dog. वेब से अगर मुझे कुछ उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए, I can simply collect the information from here. I can select images. If I want this image to be inserted, insert option, and this image is inserted. So there are 3 options to insert image in the Google Doc also. If you want something to be inserted from the drive,
You can go and select from drive also. This explore button will take you everywhere, to web, to the image, and to the drive folders. Then comes table. If you want a table in your Google Doc, you can select the table, how many rows, how many column you want. You can take it, select it from here, and you can insert a table. See, the table has been inserted here. You want a drawing here, you want from the Google Drawing. Actually drawing वाला पहले प्रोसीजर था. अर्लियर इमेज इंसर्ट करने के ऑप्शंस नहीं मिलते थे. अगर हमें कोई इमेज इंसर्ट करना है, कुछ ड्रॉ करना है, तो नहीं मिलता था. दिस ड्रॉइंग वी यूज फॉर दैट. हम यहाँ पे कोई इमेज इंसर्ट करते थे और यहाँ से हम अपने डॉक पे ले जाते थे. नाउ दीज ऑप्शंस आर ऑल अपडेटेड हियर. मैंने ड्रैग करके इमेज ले लिया. नाउ इट इज इंसर्टेड. Wait a minute. So I came to my tab. ये था यहाँ पे, मैंने कहा था गूगल ड्राइंग, न्यू. मैंने ड्रैग करके ये पिक्चर यहाँ डाल दी थी. Oh sorry, this was the picture, and save and close. Now this picture is inserted in the Google Doc. You can see. So earlier we were inserting the picture in this way. कोई शेप इंसर्ट करना होता था तो हम लोग गूगल ड्राइंग के थ्रू जाते थे. Now we got the option of inserting the picture also here in Google Doc. Then charts. Charts we create in the Google Sheet. I will show you this later on when I will be working with the sheet, how to make chart and how to insert in the Google Sheet. Now one more thing is inserted here. The new feature has come, that is drop down. ये इंग्लिश टीचर, हिंदी टीचर, मैथ्स टीचर सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है. Now let me show you how to go for it. ये मेरा डॉक है. अब मैंने बर्ड की इंफॉर्मेशन यहाँ पे विकिपीडिया से ले लिया. मान लीजिए आई एम गोइंग टू विकिपीडिया and I have taken few lines from here. ये हमने कर दिया. जनरली क्या होता है, बच्चों को स्पेलिंग्स की बड़ी प्रॉब्लम होती है. अगर हम फिलिंग द ब्लैंक्स दे रहे हैं, बच्चे गलत स्पेलिंग लिख रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं. अगर मैंने अंडरलाइन करके दिया है तो बच्चे उस अंडरलाइन के नीचे या ऊपर लिख देते हैं, वो अंडरलाइन नहीं हटाते हैं. तो इट इज वेरी डिफिकल्ट. Now this is the feature. Let me show you. ये जैसे मैंने यहाँ से वर्ड उठाया, कॉपी किया और मैंने इस वर्ड को यहाँ नीचे कहीं पेस्ट कर लिया और इस वर्ड को यहाँ पे मैंने अंडरलाइन फॉर्म में डाल दिया. ठीक है. यहाँ से मैंने वर्ड को लिया, कॉपी किया और इस वर्ड को मैंने यहाँ पे डाल दिया. नो ये समटाइम्स को मैंने यहाँ से लिया, कॉपी किया, आई मेड अ लाइन हियर एंड आई पुट इट हियर. ये 3 वर्ड्स मैंने डाल दिया. ये 3 फिल इन द ब्लैंक्स है. अब क्या है, यहाँ पे मैं इंसर्ट ऑप्शन में गई और हमने यहाँ से ड्रॉप डाउन लिया. ड्रॉप डाउन लेने के बाद मैंने न्यू ड्रॉप डाउन खोला. अब ये जो वर्ड्स थे यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पेस्ट कर दी.
हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। दूसरा वर्ड था जनरेशन, तीसरा था समटाइम्स, और कंफ्यूज करने के लिए एक और वर्ड डाल दिया मैंने, ये भी। नाउ आई वांट दिस ऑप्शंस टू बी कलर्ड, मुझे इनको कलर करना है कि ऐसे ये थोड़े से कलर्ड दिखे। मैंने कलर कर दिया और सेव कर दिया। नाउ कैन यू सी दिस ऑप्शन इज विजिबल हियर। बच्चे को जब हमने डॉक्यूमेंट दिया, ही विल क्लिक हियर, इसमें से जो भी ऑप्शन उसको सेलेक्ट करना होगा वो सेलेक्ट करेगा, and then he can move for the next one. You can here also insert that drop down. Once you have created with so many words, it will be given here. यहाँ पे आप लिख सकते हैं, वहां से कर सकते हैं। यहाँ पे फिर हमने ये वर्ड को सेलेक्ट किया, ये जहां से मैंने वर्ड लिया था, इंसर्ट, ड्रॉप डाउन, और कॉन्फ़िगर वाले को मुझे नाम देना है, तो मैंने यहाँ पे दिया मिसिंग वर्ड्स एंड सेव। अब यहाँ से बच्चों को मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैं इंसर्ट में गई और मैंने ड्रॉप डाउन लिया, मिसिंग वर्ड्स नाम का आ रहा है, मैंने इसको डाल दिया। एंड नाउ स्टूडेंट कैन इजीली चेक इट फ्रॉम हियर विच ऑफ द वर्ड शुड कम हियर। दे कैन, ये टर्म्स के लिए हो सकता है, डेफिनेशंस के लिए हो सकता है, इंग्लिश में कोई कॉन्सेप्ट देना है उसके लिए हो सकता है, कोई पिक्चर हमने दिया उसको डिफाइन करने को दिया, उसमें कुछ वर्ड मिसिंग करके हम उसमें डाल सकते हैं। So it can be used. This is the new feature which is added in Google Doc. So then these all things are there. Let me check what were the topics were there. Now feedback and comment. I'm coming to this side. ये फीचर मैंने दिखा दिया। अब मुझे शेयर करना है पहले, तो how I want to share with my student or with my colleagues. You want them to be editor, so you can send it as editor. ये मैं एडिटर की तरह से भेज दूंगी। अगर मुझे एडिटर नहीं भेजना है, मैं चाहती हूँ कि सिर्फ वो व्यू कर सके, इसमें कोई भी काम नहीं कर सके, तो एज अ व्यूअर मैं सेंड करूंगी। और मैं चाहती हूँ कि उसमें उसका फीडबैक आए, तो एज अ कमेंटेटर भी मैं सेंड कर सकती हूँ। ये भी नहीं करना है तो यू कैन गेट द लिंक। जब हम लिंक लेते हैं तो जनरली क्या होता है, मुझे कोई ना कोई डॉक्यूमेंट का लिंक हम लोग को कहीं ना कहीं एक्सेल फाइल में, SIPs में हमें पोस्ट करना होता है। सो यू कैन टेक द लिंक फ्रॉम हियर। यू वांट ओनली दिल्ली पब्लिक स्कूल वाराणसी, आपका डोमेन आप में रिफ्लेक्ट करेगा जब भी आप यूज करोगे। तो यू वांट ओनली दिल्ली पब्लिक स्कूल वाराणसी पीपल शुड व्यू और एडिट योर फाइल, so you can go with your domain. If you don't want from your domain, anyone whosoever gets the link can view the file or edit the file or can comment. You can select the permission from here also, and you can copy the link after selecting. अगर आपने viewer कर दिया, you just copy the link and send the link to the person you want. Or if you want to paste it in any of the Excel sheet, आपने वहां लिखा क्लास 5, आप चाहते हो कि ये लिंक यहाँ पे चली जाए, आप चाहते हो कि ये लिंक वहां पे चली जाए, तो यू जस्ट सेलेक्ट द नेम, go to the insert option. Can you see here insert option? And then paste the link here and apply. Now this word is been hyperlinked. अब जो भी बंदा इस वर्ड पे क्लिक करेगा, he or she will reach to the document here. Is it clear? Any doubt till here? Sure everyone? Okay. Then now from here also, if you wanted to assign someone something, you can write @ and you can send any document to anyone
एट द रेट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है पीपल का भी। आप किसी को मीटिंग ब्लॉक्स, ये आ गया, मीटिंग नोट्स कुछ डालना चाहते हो, आप इंट्रोडक्शन टू क्लासरूम वाली जो फाइल है वो अटैच करना चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट के साथ, यू कैन क्लिक ऑन दिस एंड द फाइल इज अटैच्ड हियर। आपके पास आपके डॉक में एक अनदर हाइपरलिंक्ड फाइल है, यू कैन अटैच द फाइल हियर। अगर आपने इसी डॉक को एट द रेट किया, सॉरी यहाँ पे हम नीचे आते हैं, हमने एट द रेट किया, ठीक, मैं चाहती हूँ सुनीपा सान्याल को मेल करना, आई कैन मेल इट फ्रॉम हियर, I can have the Zoom meeting also from here. So this is again a new thing which is added in the doc. इसको कहते हैं चिप। फिर से बता दीजिए, सॉरी मैम। Yes ma'am, sir. सर मैम ये वाला फिर से एक बार बता दीजिए ना। ये सर एट द रेट लिख करके आपने अपने डॉक पे एट द रेट बस लिखा, सॉरी एट द रेट करते हैं तो आपसे रिलेटेड जिसको आप जनरली हमेशा भेजते हो मैसेजेस, वो आपके पास लिंक आ जाते हैं, ईमेल आईडीज आ गए उसके, ठीक है, यू कैन सेलेक्ट इट फ्रॉम देयर। अगर आपको ईमेल नहीं भेजना है, आपको कोई डॉक कुछ अटैच करना है, कोई चेकलिस्ट लगानी है, कोई इमेज लगाना है, कोई ड्राइंग, कोई चार्ट, आपको कोई चार्ट लगाना है फ्रॉम शीट, you can select the sheet and you can select anything from there। जैसे हमने चार्ट के लिए कहा है तो it will take the chart sheet only। तो हम चार्ट जहां पे भी होगा वो फाइल खोजेंगे, I have a chart here in this file, I have selected this and I got the chart। अब उस फाइल पे मेरे जितने चार्ट्स थे, I can select one of the chart and link to spreadsheet। वो चार्ट मेरा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। वेट अ मिनट, राइट नाउ कोई इश्यूज है, इट इज नॉट टेकिंग, वो आपका इंसर्ट हो जाता है। हाँ ये आ गया इंपोर्ट, ये चार्ट मेरा वहां से मेरी उस फाइल से चार्ट निकल करके यहाँ पे पेस्ट हो गया, ओनली द चार्ट पोर्शन। अगर इसी तरह मुझे कोई इमेज चाहिए तो वो इमेज भी उस डॉक्यूमेंट से मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। मतलब पर्टिकुलर चार्ट, मतलब पूरी शीट तो नहीं आ पाएगी, पर्टिकुलर कोई शीट में आपका चार्ट आ गया, क्योंकि मैंने सिर्फ चार्ट के लिए बोला था। ओके ओके मैम, ओके अगर कोई इमेज बोलते हैं तो वो इमेज आएगी उस फाइल से। ओके ओके फाइन, या गॉट, थैंक यू मैम। डॉक्यूमेंट चाहेंगे तो वो डॉक्यूमेंट भी आएगा। Ma'am, all this is from insert option, right? नो it is not from insert the rate. option, at the rate मैंने किया है। Okay, I got ठीक है, I am getting these things। ठीक है, Yes, ma'am. Now I got it. okay, so now coming to comment section। अब मेरे पास ये वर्ड है and I don't want this word to be added here। ठीक है, तो when I select this, I get an option on my right side to write any comment। So I want to add a comment with this, so I can use this comment box and I can write the comment here। अगर मुझे स्पेसिफिक किसी पर्सन को देना है तो एट द रेट करके यहाँ पे भी वो कमेंट उस पर्सन के पास जाएगा। मैंने यहाँ से कमेंट किया, मैंने कमेंट लिखा असाइन टू सुनीपा सान्याल, तो ये सिर्फ सुनीपा सान्याल को ही ये कमेंट जाएगा।
others cannot view this. So this is going to be a personal comment to anyone. उसकी फाइल है, मान लीजिए कोलैबोरेटिव फाइल है, और मैं चाहती हूँ सिर्फ उसी बच्चे को पता चले कि उसने क्या गलती की है, तो आई कैन डू इट लाइक दिस. Okay, so can you see someone need access to the file? Because I have asked to join this file, comment लिखा है, turn the link on और share with one person. जो भी आपको जिस हिसाब से कमेंट करने के लिए, एडिट करने के लिए मैंने कमेंट किया कि उसको तुम्हें सही करना है, तो आई कैन गिव द एडिट राइट टू दैट पर्सन, और मैंने भेज दिया, तो इट इज गॉन टू दैट पर्सन. असाइन दिख रहा है, सुनीपा सानी. So she can do and resolve this problem. यहाँ से भी आप एडिटिंग और सजेस्टिंग व्यू देख सकते हैं कि आपको कौन सा व्यू मिला है. एडिटिंग व्यू है, सजेस्टिंग है, व्यूइंग व्यू है, तो यहाँ से भी असाइन कर सकते हैं. देन कम्स कमेंट सेक्शन. पर्सनली किसी को आपको कमेंट करना है, किसी पर्सन को, अगर कोलैबोरेटिव वर्क चल रहा है और आपको बात करनी है, इसमें चैट करना है, तो यू कैन कमेंट इट फ्रॉम हियर ऑल्सो. ऑल फॉर यू, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए, ओपन टू ऑल, सारे लोगों के लिए. वो कमेंट आपने जो किया है वो ओपन करके कमेंट करते हैं, तो यू कैन गो फॉर दैट एंड यू कैन ऐड द कमेंट हियर ऑल्सो. इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस? नो मैम. Okay. Now, when you give a collaborative work to someone, ठीक है, आप चेक करते हो कि उसमें कहता है, कोई बच्चा ये बोलता है, अरे उसने तो डिलीट कर दिया मैम, उसने मेरा वाला कॉपी करके अपनी जगह पेस्ट कर लिया, उसने मेरी चीजों को वहां से हटा दिया है. सो यू कैन गो फॉर वर्जन हिस्ट्री. जैसे अगर मैं किसी भी एक डॉक या शीट लेती हूँ, तो उसके वर्जन हिस्ट्री में हम जा सकते हैं. ये देखिए, this is the place from where you can go on the version history. यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने किस किस टाइम पे एडिटिंग किया है, इट इज शोइंग. अगर किसी और का ये कोलैबोरेटिव कोई हो, कोलैबोरेशन में कोई फाइल हो, तो हम वो भी खोल सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं. लेट मी चेक इफ आई हैव एनी फाइल. Okay, this is the file here. ये मैं उठाती हूँ. This file is shared with many people. This is a doc file. अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है लास्ट एडिट वाज मेड 3 days. अब हमने वर्जन हिस्ट्री यहाँ पे देखा कि 3 दिन पहले इसमें क्या क्या हुआ था. सी फुल वर्जन हिस्ट्री. जब हम कहते हैं फुल वर्जन हिस्ट्री के लिए, तो राइट साइड में हमारे पास आ जाएगा किस किस डेट पे किसने किसने चेंजेस किया है. एंड इफ आई वांट दैट सेम वर्जन, लिखाएगा मुझे चेंज कुछ दिख रहा है, आई विल मूव टू दैट वर्जन. मैं उस वर्जन पे जाऊंगी और मैं देखूंगी कि क्या चेंजेस है. एंड इफ आई वांट दैट सेम वर्जन, देखिए यहाँ पे जो स्ट्राइक ऑफ वाला किया दिख रहा है, दैट इज बीन चेंज्ड. ये मैंने चेंजेस किया है. यहाँ पे दिखा रहा है कि स्मिता जैन हैज डन द चेंजेस. कैन यू सी हियर? ये ग्रीन कलर वाला मुनमुन सेन गुप्ता हैज डन द चेंजेस. एंड इफ यू वांट दिस वर्जन टू बी स्टोर्ड, आप यहाँ से रिस्टोर कर दीजिए. आपने देख लिया ये चेंजेस हुआ है, यू कैन बैक टू योर सेम ओरिजिनल वर्जन. ये आप वापस आ गए. इज इट क्लियर? वर्जन हिस्ट्री. मैम रिस्टोर वाला 3 बटन से भी तो हो सकता था ना, आपने कैसे किया मैम? ये वर्जन हिस्ट्री पे गए. हाँ, ये वर्जन हिस्ट्री है, मैंने इस पे क्लिक किया, ये मुझे दिखा, मुझे यहाँ पे क्या था. रिस्टोर आप यहाँ से भी कर सकते हैं उस वर्जन को, रिस्टोर आप यहाँ से भी कर सकते हैं. आपने कैसे किया मैम, वो वाला दिखाइए. मैंने यहाँ से, मैंने बैक किया था, मैंने रिस्टोर नहीं किया था. अच्छा, आपने बैक किया था. मैंने बैक किया था. ठीक है. एनी डाउट इन डॉक? लास्ट वाला सिर्फ. क्या चीज मैम?
मैम लास्ट जो आपने बताया अभी मतलब उसके बाद एट द रेट का जो भी काम था उसके बाद, उसके बाद मैंने वर्जन हिस्ट्री बताया है। हाँ वर्जन हिस्ट्री वाला मैम। तो वर्जन हिस्ट्री अभी तो मैं बता रही थी, ये देखिए ऊपर देता है यहाँ पे, लास्ट एडिट वाज मेड 5 मिनट्स अगो बाय स्मिता जैन। मैंने इस पे क्लिक किया तो ये मुझे वर्जन हिस्ट्री दिखा देगा। ओके मैम, तो वर्जन हिस्ट्री डॉक पे ही ऊपर के साइड रहता है? ऊपर सारे डॉक में, शीट में, हर जगह आपको मिल जाएगा। तो वो सिंबल है या रिटन रहता है? क्या चीज रिटन रहता है? ये देखिए लास्ट एडिट, ये दिख रहा है आपको? हाँ मैम, हाँ इट इज विजिबल नाउ। उस यस पे मैम। क्लियर करना है, उस पे क्लिक कीजिए, ओके आपके ओके पास आ मैम, ओके मैम, थैंक यू। जाए। ओके, नाउ रिव्यू ग्रुप कंट्रीब्यूशन। स्मिता मैम, हाँ जी, सॉरी मैम। हाँ मैम जी। मेरे डॉग पे अगर किसी बच्चे ने कुछ लिखा है, मैंने दिया है उन्हें लिखने के लिए और डिलीट कर देते हैं, तो क्या मुझे दिख जाएगा वर्जन हिस्ट्री पे किस बच्चे ने किया? अगर सारे बच्चे एक साथ है तो नाम दिख जाएगा किसने हाँ डिलीट किया बिल्कुल है? दिखेगा मैम, बिल्कुल दिखेगा। जैसे अब यहाँ पे 4 लोग काम कर रहे होंगे तो मुझे दिखेगा कि इस रो पे कौन काम, ये कलर्स अलग अलग आ जाते हैं। इफ यू हैव सीन अच्छा। हियर, ये सबके अलग अलग कलर्स दिखेंगे। ये तो मेरी फाइल है, जो आपके संग कोलैबोरेटिव फाइल होगी ना, उस पे अलग अलग कलर्स में आ जाएंगे, इसने ये काम किया, इसने ये काम किया। और वो किसी देखिए, बच्चे ने किसी दूसरे बच्चे का डिलीट कर दिया है तो वो उसके रो में दिखाएगा कि कौन बच्चा उस रो में इसके जाकर पहले के? वाला वर्जन चेक कीजिएगा, उसके पहले वाले वर्जन को चेक कीजिएगा, आपको दिखेगा। अच्छा, ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, वो वर्जन को आप रिस्टोर कर लीजिए। ओके मैम, लेकिन थैंक उससे यू मैम। पहले मैम, उससे पहले अगर आप उस वर्जन को स्टोर करती हैं तो उसके बाद जितने लोगों ने काम किया वो भी हट जाएगा। तो मेक अ अच्छा, कॉपी करके स्टोर कीजिएगा, जिससे कि पुराना नया वाला चीज भी रह जाए और पुराना वाला मैंने रिस्टोर कर लिया। ओके ओके मैम। ठीक है, यस मैम। अदरवाइज यस पुराने मैम। वर्जन में जाएंगी तो बाद के बच्चों ने जो काम किया है वो नहीं होगा, आपके पास दिखेगा। अच्छा, ठीक मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। सो आई होप हमारा गूगल डॉक्स भी पूरा हो गया। वी हैव डन। एनी डाउट इन गूगल डॉक्स टू एनीवन? एक्सक्यूज मी स्मिता मैम, हाँ मैम। डॉक में एक ऑप्शन है फॉर्मेट। फॉर्मेट में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हेडर्स एंड फुटर्स है, हाँ जी मैम। उसको हम कैसे उसकी सेटिंग कैसी होती है? एक हेडर बार मतलब please। होता है ऊपर का जो पार्ट होता है, जैसे आपकी ये ऊपर का पार्ट है। हाँ। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया स्मिता, ठीक है, तो ये सेट हो जाता है, आपके हर पेज पे स्मिता लिख के आएगा। ओके। ये हम हेडिंग डालते हैं। ठीक है, जैसे बुक्स बनती है, बुक्स में ऊपर दिया होता है सारे चैप्टर्स का नाम। ठीक है, तो वो एज ए हेडर हम डाल देते हैं। फुटर में पेज नंबर्स डालते हैं या पब्लिशर अपना नाम डाल देता है नीचे, तो ये फुटर वाले एरिया में आ जाता है। ओके मैम, ओके मैम। ठीक है, फुटर फॉर्मेट, पेज नंबर, रिमूव फुटर, तो यहाँ पे आप पेज नंबर डाल सकते हैं, हेडर फुटर। ओके मैम, थैंक यू। जी, यहाँ पे मैंने पेज नंबर डाल दिया, तो देखिए ये पेज नंबर आ रहा है। हाँ जी मैम, थैंक यू मैम। अब हम इसके बाद जो भी पेज देखेंगे सब पे पेज नंबर आएगा, देखिए। यस मैम। और सबके हेडर में स्मिता दिखेगा। यस मैम। एक जगह मैंने हेडर फुटर में डाल दिया तो सबकी जगह पे स्मिता दिखेगा। क्लियर है? यस मैम, थैंक यू। ओके, नाउ मूविंग अहेड, मूविंग टू गूगल शीट। किसी ने हाथ रेज किया? यस रोशनी मैम। Roshni ma'am, you want to ask something? Can we delete header and footer later? Of course we can delete. We can remove it. अभी आप देख रहे थे यहाँ पे जब हेडर वॉटर फुटर लगा तो ये रिमूव फुटर भी आ रहा है। रिमूव इट, उसके पास बटन में, एक मिनट, स्क्रीन प्रेजेंट कर दीजिए। हाँ जी, स्टॉप जस्ट नाउ। ये देखिए मैम, ये मैंने यहाँ पे फुटर लगाया, यहाँ पे पेज नंबर भी दे रहा है, रिमूव फुटर भी दे रहा है। यू कैन रिमूव ऑल्सो। इज इट क्लियर मैम? ओके मैम, हेडर फुटर आपने इंसर्ट ऑप्शन से दिया, फिर वो रिमूव फुटर कहाँ से ऑप्शन आया? मैम, इंसर्ट से भी डाल सकते हैं। जब आप इंसर्ट से एक बार इंसर्ट कर सकती हैं तो उसके बाद आपको रिमूव ऑप्शन वहां पे ही दे देगा, और नहीं तो साइड में बटन देता है, वहां पे भी दे देता है।
ये देखिए यहाँ पे मैंने अभी दिखाया, ये देखिए, ये दिख रहा है, यहाँ पे फुटर मैंने लगाया है, ये ऑप्शन पे गए, रिमूव फुटर दिख रहा है, हाँ 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 ठीक है। हाँ, ये छोटा सा ट्रायंगल रहेगा, मतलब हाँ। इंसर्ट से डालने के बावजूद भी रहेगा। ये देखिए यहाँ पे भी है हेडर के पास, मैंने इंसर्ट से डाला, ठीक है। ओके, नाउ आई एम क्लोजिंग माय डॉक, कमिंग टू गूगल शीट। So Google Sheet में again we will work on how to create Google Sheet, how to share a Google Sheet with others, spreadsheet vocabulary, like there are terms जिसको जानना बहुत जरूरी है when we are working on Google Sheets. Formatting cells, जो सेल पे हम काम करते हैं उसको फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं, शॉर्टिंग नंबर्स, टेक्स्ट और डेट्स, शॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 1 2 3, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, organize data collected in a Google Sheet using formula and functions including sum, average, COUNTIF, count, analyze the data in Google Sheet with charts and graph including pie chart and line chart, use of trend line to monitor student growth. अगर आपने एक पूरा मार्क लिस्ट बनाया हुआ है, so you can see a trend line. When you make a trend line, you can easily make out कि ये बच्चे की ग्रोथ कैसी है, ये ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है. You can find it out that. Move chart to their own sheet, adding charts from sheet to sites, docs and slide. अभी डॉक्स में मैंने बताया था कैसे हम चार्ट्स को इंसर्ट कर सकते हैं, उसी तरह से साइट्स और स्लाइड्स में भी करते हैं. Publish result from Google Sheet, protecting sheet and ranges. Use Google Sheet for a class roster, gradebook or project plan. So now I am coming again to my new tab and opening sheets in the same form जैसे हम लोगों ने Google Docs open किया था, in the same way we open Google Sheet also. We go to the 9 dots, यहाँ पे sheets है, मैंने sheet पे क्लिक किया, sheets open हो जाएगी. मैं drive पे गई, ड्राइव के प्लस साइन पे क्लिक किया, गूगल शीट आई विल फाइंड हियर, आई कैन क्लिक ऑन दिस. इफ यू वांट अ टेम्पलेट यू कैन गो फॉर टेम्पलेट, इफ यू वांट अ ब्लैंक स्प्रेडशीट यू कैन गो फॉर अ ब्लैंक स्प्रेडशीट एंड यू कैन सिलेक्ट. और तीसरा तरीका है यू टाइप हियर शीट्स डॉट न्यू. अगर आप शीट लिखेंगे एस इज मिसिंग तो नहीं आएगा, शीट्स लिखेंगे तभी शीट्स एक नई शीट खुल के जाएगी. Now this is the sheet open. Okay. Now we were talking about collaborating. Collaborating I think everybody knows. जैसे हम करते हैं हर जगह पे, सबसे पहले हमें नाम देना होता है किसी भी स्प्रेडशीट का. हमने नाम दे दिया, नाम देने के बाद ही हम उसको शेयर कर पाते हैं. The same way as I have told about the doc, in the same way you can take the link from here. अगर लिंक लेना है उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, अपने डोमेन के पर्सन को बोल सकते हो, या कोई भी इस लिंक वाला है जो एडिट भी कर ले, और आपके ऊपर है आप परमिशन कैसे देते हो, एज अ कमेंटर, एज अ एडिटर. एंड इफ यू डोंट वांट दैट यू कैन ऐड दैट पर्सन. अगर स्पेसिफिक किसी एक पर्सन का आपको आईडी मालूम है एंड यू वांट टू ऐड हिम और हर, you can add it from there. ठीक है, any doubt इसमें? Now ये जो ABCD देख रहे हैं, ये लंबा वर्टिकल वाला पार्ट ABCD, this is called as column. ये लंबे से अगर हमने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4, ये 1, ये 2, ये 3, so this is under column 1. Or when we are talking about rows, then it goes horizontal. So only 1 is written in this row. अगर कॉलम की बात करें तो 1 2 3 लिखा हुआ है. अगर हम उसकी बात करते हैं, रोज की बात करते हैं, 1
अगर हम रोज की बात करते हैं तो सिर्फ 1 लिखा हुआ है. दिस इज हॉरिजॉन्टली, दिस इज रो, वर्टिकली इट इज कॉलम. And these, when columns and rows intersect each other, it makes a cell. ये आपका सेल हो गया. ठीक है, ये जो स्क्वायर बॉक्स देख रहा है, रेक्टेंगल बॉक्स, this is known as cell. Now here is the formula bar. This is your formula bar. Whatever you write here, it reflects here also in the formula bar. ये आपका formula bar है. और ये एक जैसे ही आपने सेल सेलेक्ट किया, आपका यहाँ पे एड्रेस दिखाता है. जैसे हर एक का फ्लैट नंबर होता है, उसी तरह से हर एक बॉक्स का, हर एक सेल का एक एड्रेस होता है. दिस इज नोन एज नेम बॉक्स. और यहाँ पे उस सेल का नेम होता है. जो सेल मैंने सेलेक्ट किया है उसका ये सी कॉलम के अंदर है और ये 4th रो है. रो इज नंबर्ड, नंबर फॉर्म में होता है, नंबर्ड में होता है. और कॉलम जो होता है वो अल्फाबेट्स में होता है. सो अगर हम फॉर्मूला और फंक्शन की बात करते हैं तो वी शुड बी क्लियर विद दिस थिंग. ये चीजें को हमें क्लियर कर देना है. मैम फॉर्मूला कहाँ पे, क्या चीज कहाँ पे है मैम? स्मिता मैम फॉर्मूला कहाँ से, मतलब कॉर्नर में कहाँ पे है? ये पूरा फॉर्मूला बार है जहाँ पे हम लिख रहे हैं. अच्छा, उसे फॉर्मूला बार कहेंगे. ओके ओके, फॉर्मूला बार. ठीक है. नाउ दिस इज डन. ये सारे टर्म्स होते हैं. ये सिंपल है. एक्सेल अगर मैं पढ़ाने बैठूं तो बहुत लंबा है, बट दिस इज जस्ट अ सिंपल थिंग. अब आता है उसके बाद मैंने क्रिएट कर दिया, मैंने शेयर बता दिया, मैंने वोकैबुलरी बता दिया. अब फॉर्मेटिंग का पेज आता है. ठीक है. आई हैव ओपन दिस शीट, आई हैव मेड इट फॉर यू ऑल ओनली. मैंने नेम्स लिख लिया. अब मुझे फॉर्मेटिंग करनी है. तो फॉर्मेटिंग में मैंने रेंज सेलेक्ट किया. जहां तक मुझे चाहिए मैंने एक रेंज सेलेक्ट किया. अभी ये लाइंस नहीं दिख रही हैं, मैंने वहां से बॉर्डर लाइन बना दिया. ये बॉर्डर लाइन इसमें लग गया. अब ये बॉर्डर लाइन मुझे कलर्स में चाहिए. मुझे ये बॉर्डर लाइन मुझे ब्लू कलर में चाहिए. मुझे ये बॉर्डर लाइन थोड़ी सी थिक चाहिए, या मुझे डैश फॉर्म में चाहिए. तो देखिए डैश फॉर्म में आ गया. अगर मुझे थिक चाहिए तो मैंने यहाँ पे थिक लाइन ले ली. कैन यू सी? नाउ आफ्टर दिस आई वांट दिस ब्लॉक, ये जो पूरा रो है फर्स्ट वाला, आई वांट दिस विद डिफरेंट कलर, जिससे कि बच्चों को तुरंत अट्रैक्ट करे. मैंने दूसरे कलर में कर लिया. मैंने इसको सेलेक्ट किया. मैंने कहा कि इसके जो जितने टेक्स्ट हैं वो बोल्ड हो जाए एंड टेक्स्ट कलर जो है डिफरेंट कलर का हो जाए. आई वॉन्ट इट इन ब्लू कलर. ये मैंने टेक्स्ट का कलर भी ब्लू कर दिया. मैं चाहूँ तो इसको पिंक भी कर दूं. ये पिंक हो गया. सो दिस इज हाउ वी कैन डू द फॉर्मेटिंग. आई वॉन्ट टू चेंज द फॉन्ट फ्रॉम हियर. मैंने चेंज कर लिया. फॉर्मेटिंग इज लाइक when we go to beauty parlor and get ourselves formatted. वहां से हम सुंदर दिख के आते हैं. It is same with the any of the sheet. If you are going with the docs, if you are going with the sheet, it is same. Formatting मतलब उसको सुंदर बना देना. सुंदर बनाना जिससे कि वो अट्रैक्ट कर सके और जिससे कि वो हमारे लिए इजीली हो जाए आइडेंटिफाई करना कोई भी चीज है. Now after doing this, now can you see this name list? ये जो नेम लिस्ट है वो हमारी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है. मैं चाहती हूं कि ये नेम लिस्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो जाए. तो मैंने क्या करना है, ये पूरा रेंज को सेलेक्ट करना है. देन आई विल गो टू फॉर्मेट, सॉरी डेटा, और मुझे यहां से इस रेंज को हमें क्या करना है, शॉर्ट करना है. तो शॉर्ट रेंज बाय कॉलम ए, और कॉलम ए से नहीं करना है तो हम एडवांस में जा सकते हैं. और हमने कहा कि नाम के अकॉर्डिंग पूरा डेटा मेरा रीसेट हो जाए. तो इट इज गोइंग टू रीसेट अकॉर्डिंग टू द नेम्स. कैन यू सी नाउ? ए कॉलम में नेम्स थे, नेम्स के अकॉर्डिंग मेरा रीसेट हो गया. ये अल्फाबेटिकल हो गया. सबके मार्क्स भी सेट हो गए कॉलम ए के अकॉर्डिंग. Now I am doing Control Z, you can see. ये वापस वैसा मैंने कर दिया.
Now if you have selected the header also, अगर आपने हेडर भी ऊपर से सेलेक्ट कर लिया है, आप डेटा में जा रहे हो, शॉर्ट रेंज कर रहे हो, एडवांस के लिए आ रहे हो, डेटा हेडर रो को क्लिक कर दीजिए। अब आपके यहाँ पे एरोज दिखने लगेंगे, यहाँ पे आपके जितने ऊपर हेडर्स हैं वो दिखने लगेंगे। मुझे नेम के अकॉर्डिंग अल्फाबेटिकल करना है, मैंने नेम के अकॉर्डिंग कर लिया। मुझे मार्क्स के अकॉर्डिंग करना है, क्लास क्विज में असेंडिंग ऑर्डर में करना है, मैंने क्लास क्विज के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़ा मैंने क्लास क्विज के अकॉर्डिंग कर लिया। ये देखिए 40 वाला पहले आ गया, 67, 67, 67, 73। ये मार्क्स के अकॉर्डिंग ये नाम हमारे शॉर्ट करके सेट कर दिए हैं, शॉर्टिंग कर दिया है यहाँ पे। तो इट इज ऑन यू ऑन विच फील्ड यू वांट टू शॉर्ट। आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, डेटा पे जा सकते हो, शॉर्ट रेंज कर सकते हो, शॉर्टिंग आपकी हो गई। इफ यू हैव सेलेक्टेड द हेडर, you can select it according to the heading. It is selected. उसको डिसेंडिंग कर देंगे तो नीचे से ऊपर, बड़े से छोटे पे आ जाएगा। क्लियर है? शॉर्टिंग इज क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। स्मिता मैम, हाँ जी। जैसे अभी हम लोग का केवाईसी शेयर हुआ था, ठीक है, तो केवाईसी में हमने सेक्शन वाइज तो सॉर्ट कर लिया। अगर जैसे क्लास वाइज करना था तो उसको कैसे कर सकते हैं? क्लास वाइज मैम उसको अगर क्लास और सेक्शन दोनों एक साथ लिखा हुआ है, नहीं, अलग अलग है। एक में ई में एक कॉलम में आपका ई लिखा हुआ है, मैंने सेक्शन लिखा है, एक में क्लास लिखा हुआ है। हाँ, तो आपको कैसे सेग्रीगेट करना है? सेक्शन वाइज करना है? हाँ, सेक्शन वाइज, क्योंकि वो तो मिक्स हम लोग का केवाईसी पूरा मिक्स आया है। हाँ, तो आप पहले क्लास वाइज सेलेक्ट कर लिया ना, आपने सेलेक्ट कर लिया है। 4 हाँ जी, वाले एक section जगह पे wise। आ गए, हाँ। 4 वाले एक जगह पे आ गए, तो जी। अब जितनी जगह पे 4 वाले आए हैं, हाँ, वही 4 वाला ही कैसे करना है, वो वाला हाँ, ही तो चाहिए। सिर्फ उतना पोर्शन ही आप सेलेक्ट कीजिए। नहीं, एक मिनट, अगर मैं आप मुझे परमिशन दें तो आप मैं प्रेजेंट कीजिए अपनी स्क्रीन। हाँ, तो मेरा तैयार हो गया है, बस मैं आपको आप स्क्रीन प्रेजेंट कीजिए, मैम बता देंगे। जी जी जी। हाँ, केवाईसी, हाँ ठीक है। ये दिख रहा है स्मिता मैम? स्मिता मैम, हाँ जी, दिख रहा है मैम। दिख रहा है ना? अब ये देखिए, ये आपके- जैसे ये है पूरा, ठीक है, हाँ, ये सब मिक्स बैग है ना? ठीक है। ठीक है, ये तो अभी व्यू ओनली मोड पे, तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। अगर मैंने कॉपी किया और उसके बाद, तो मुझे जैसे यहाँ से सॉर्ट करना है, ठीक, हाँ जी, ये क्लास वाइज, अगर इसमें करती हूँ तो ये A to Z, तो ये तो समझ में आ रहा है, हाँ। Z to A, लेकिन नंबर वाला नहीं आ रहा है इसमें। आप पूरा शीट सेलेक्ट करेंगे मैम, पूरा शीट पहले सेलेक्ट कीजिए। पूरा शीट सेलेक्ट करके, अच्छा, हाँ, एक ये मिनट। पूरी शीट सेलेक्ट कीजिए, अदरवाइज डेटा इधर उधर हो जाएगा। ओके, समझ लिया। बहुत, क्योंकि एक्चुअली इसमें मेरा तो मैं तैयार हो चुका है, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन हो रहा था। तो अरे यहाँ कॉर्नर से सेलेक्ट करती पूरी शीट हो जाती है। कंट्रोल ए कर दिया बेबी, कंट्रोल ए कर दिया। अब डेटा में जाइए। डेटा में, हाँ, ये तो व्यू ओनली है, आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे इसमें। हाँ जी, इसीलिए बोल रही हूँ, आप करिए, आपके पास अगर हो तो। या सुनीपा मैम के पास है, सुनीपा मैम इज द ओनर। सुनीपा मैम, मैं स्टॉप कर रही हूँ। सुनीपा मैम, आर यू देयर? शी इज द ओनर, शी कैन डू। अभी नहीं होंगी वो यहाँ पे। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। तो अच्छा, इसको सेलेक्ट करके उसमें नंबर्स आएगा। इसकी यहाँ से ना डुप्लीकेट देखिए, नीचे जो है ना आपका आई एम फ्रॉम मोबाइल, ओके, कोई बात नहीं, यहाँ से डुप्लीकेट कर लीजिए शीट को। कहाँ से मैम? नीचे जो एरो दिख रहा है ना टैब में, नीचे शीट 1 शीट 2 जहाँ पे लिखता है, ओके, फॉर्म रिस्पॉन्सेज, जहाँ पे आपको फॉर्म का रिस्पॉन्स है, वहाँ पे जो एरो दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए। ओके, डुप्लीकेट कॉपी 2 लिख रहा है ना, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, कॉपी आ रहा है। कॉपी 2 है ना, न्यू स्प्रेडशीट ओके, रखो ऊपर, हम आ गए। तुम जाओ, रख के बस जाओ। हाँ, ठीक है। वो न्यू वो शीट खुली, वो शीट खुली होगी नई वाली। नहीं, ऊपर खुला तो नहीं है। देखिए माई ड्राइव में जाके देखिए, आपके पास एक कॉपी बनी होगी।
रीसेंट करूँ ना? हाँ, रिसेंट में देख लीजिए, माई ड्राइव में ऐसे भी आ गई होगी, ऊपर ऊपर आपका दिख रहा होगा। नहीं आ रहा था इसीलिए तो। हाँ, अनटाइटल स्प्रेडशीट है। आ रही है ना, उसको ओपन कीजिए, ओके, ये दिख रहा टैब है टर्न मेरा? कीजिए, टैब आप टर्न कीजिए, हाँ आ गया Turn ना। कर दिया। हाँ जी। अब ये कॉर्नर में जो वन के ऊपर वाला है, वन के ऊपर वाला जो कॉर्नर वाला है उसको सेलेक्ट कीजिए। इसको? आपका पूरा, हाँ, पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। वन के A1 के नीचे वाली जो व्हाइट वाली खाली वाला हाँ सेल जी, है, हो गया हो गया। हो गया। अब आप शॉर्ट में जाइए, शॉर्ट किस, कहाँ पे जाओ? किसी में भी? फॉर्मेट में फॉर्मेट पे, ओके। नंबर, डेटा, सॉरी डेटा पे जाइए, डेटा डेटा। हाँ, डेटा में शॉर्ट रेंज आ रहा है जी या शॉर्ट शीट आ रहा है? शीट पे कीजिए, जी किया। मैम, उसमें भी आपका कॉलम ही दे रहा है, शॉर्ट शीट और मतलब कॉलम ही दे रहा है। शॉर्ट रेंज में जाइए, एडवांस रेंज में जाइए, एडवांस रेंज शॉर्ट। अब यहाँ पे देखिए कॉलम हेडर पे क्लिक कीजिए, इस पे कॉलम ऊपर, हाँ। अब नीचे आइए, यहाँ पे टाइम स्पेन जहाँ लिखा है, हाँ वहां पे क्लिक कीजिए, देखिए वहां पे दे रहा होगा क्लास और सेक्शन। पहले क्लास से कर लीजिए शॉर्टिंग, ओके। ठीक। शॉर्ट में दबा दूंगी तो क्लास से हो जाएगा? नहीं, एक मिनट रुकिए, फिर ऐड अनदर शॉर्ट कॉलम लिखिए, नीचे वाले पे क्लिक कीजिए, हाँ। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ सेक्शन से कर लीजिए, हो गया, सेक्शन पे क्लिक हुआ है, देखिए। हाँ अब ठीक शॉर्ट कर दीजिए, अब शॉर्ट कीजिए, आ गया। है जी। देखिए कॉलम और सेक्शन पे आइए, देखिए 6A 6B 6C सब आ गया होगा। जी जी, आ गया। हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। थैंक यू बाबू। ओके, शॉर्टिंग आई होप एवरीबॉडी इज अंडरस्टूड। हाँ ईशान सर। मैम ऐसे ही शॉर्ट कर सकते हैं हम नेम को भी, और बाकी जो डिटेल्स है मतलब ऐड करते जाएंगे तो वो ऐड होता चला जाएगा, मतलब वो इसके शॉर्ट। अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट करना है। अगर सिर्फ नाम है तो सिंपली शॉर्ट कर लीजिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर कोई कंडीशन के साथ करना है, मतलब सेक्शन वाइज करना है, डेट ऑफ बर्थ के वाइज करना है, ज्वाइनिंग डेट के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, कोई भी एक हेडर के थ्रू करना है, तो एडवांस शॉर्टिंग में चले जाइए, ठीक है। ओके ओके ओके, फाइन, थैंक यू सो मच। नाउ आई होप शॉर्टिंग इज क्लियर। यस मैम, अब बस हैंड्स ऑन कर रहे हैं उस पे बगल में। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू फॉर्मूलाज, ठीक है। ये फॉर्मेटिंग पार्ट हो गया, अब आई एम कमिंग टू फॉर्मूलाज। अब हमारे पास टेस्ट के मार्क्स हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया, हमारे शीट पे होता है इस तरह, बच्चों के नाम है टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 टेस्ट 4, ठीक है। अब इसको ऐड करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, किस बच्चे का क्या है हमें नहीं मालूम। तो वेरी सिंपल, एकदम सिंपल फॉर्मूला। सबसे पहले इक्वल, आई होप आई एम प्रेजेंटिंग। अच्छा, यू वर प्रेजेंटिंग। ओके, दिस इज माय नेक्स्ट शीट। अब जैसे हमारा एक टेबुलर फॉर्म में हमारे पास एक स्प्रेडशीट होती है जहां पे हमारे बच्चों के मार्क्स हमारे पास होते हैं। अब इन मार्क्स का टोटल करना, एवरेज करना, उनका पता करना कि कौन सा बच्चा कैसा कर रहा है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो सिर्फ अभी हम ऐड करना बता रहे हैं। जैसे ये बच्चा है आदित्य, आदित्य का टोटल मार्क्स कितना है मुझे पता करना है, तो हमने इक्वल्स टू की साइन दिया, हमने लिखा सम। मुझे क्योंकि ऐड करना है, आई हैव टू यूज सम फंक्शन। सम फंक्शन लिखने के बाद हमने एक ब्रैकेट लगा लिया, राउंड ब्रैकेट, शिफ्ट के संग 9 के ऊपर लिखा हुआ है, शिफ्ट दबाइए और 9 के ऊपर राउंड ब्रैकेट है। उसको सेलेक्ट करने के बाद हमें आदित्य के सारे मार्क्स को ऐड करना है, तो हम सारे सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम सेल को सेलेक्ट करते हैं तो वो पूरा रेंज कहाँ से शुरू किया और कहाँ के सेल पे खत्म किया, ये यहाँ पे दिखा दिया कि दिस इज, देखिए ये कॉलम बी है और मेरा रो नंबर 2 है। B2 से लेकर के E2 तक मैंने सेलेक्ट किया है। बीच में कोलन बताता है कि B2 से लेकर के E2 के बीच के सारे सेल, ये पूरा रेंज सेलेक्टेड है।
और मैंने ये ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और बस एंटर कर दिया। ये मेरे पास मार्क्स यहाँ पे आ गया, उस बच्चे का टोटल। अब मुझे चाहिए कि ये सारे बच्चों के मार्क्स आ जाए, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग एवरी टाइम द सेम फॉर्मूला, I can drag it this small box, square box and drop it. सेम फॉर्मूला आपके सबका हो गया, हमारे पास सबका टोटल मार्क्स यहाँ पे आ गया। अगेन आई एम शोइंग यू, ये कैन यू सी दिस स्मॉल स्क्वायर बॉक्स, इसको यहां से ड्रैग किया और ड्रॉप किया, ये हो गया हमारा टोटल फंक्शन। ये अच्छी तरह से देख लीजिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू पोस्ट दिस शीट इन द गूगल क्लासरूम, और ईच कॉपी सबके लिए जाएगी। एवरीवन विल हैव अ कॉपी ऑफ इट एंड यू हैव टू डू दिस असाइनमेंट एंड देन सेंड इट टू मी जस्ट टू चेक। ओके, सो ये हो गया हमारा सम। एक तरीका तो ये था कि हम कहाँ से ये फंक्शन लिए, इंसर्ट, और यहाँ पे भी फंक्शंस हमारे पास आते हैं, इस टैब से डायरेक्ट हम फंक्शंस सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सिंपली दिए हुए हैं फंक्शंस, अगर हमें बाय चांस याद नहीं आ रहा है तो सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिनिमम सब दिया हुआ है यहाँ पे। एक तो हम यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं, और एक हम जैसे हमने ये कॉलम सेलेक्ट किया, हम यहाँ से भी ये जा सकते हैं। साइन, ये फंक्शन की साइन है, हमने यहाँ से एवरेज लेना है तो हमें बस यहाँ से एवरेज सेलेक्ट करना है। ये पूरा फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब एवरेज हमें किसका निकालना है, ये पूरे टेस्ट के मार्क्स का निकालना है। मुझे टोटल का एवरेज नहीं लेना है, मुझे ये पूरे मार्क्स का एवरेज लेना है। हमने इंसर्ट किया, हमारा ये एवरेज निकल के आ गया। हम यहाँ पे गए, फॉर्मूला में गए और हमने इंसर्ट फंक्शन, यहां से मैंने लिया एवरेज, सेम फॉर्मूला मेरे पास डिस्प्ले हो गया। हमने वो रेंज सेलेक्ट कर ली, एंटर कर दिया, ये आ गया मेरे पास। अब मुझे सारे बच्चों का चाहिए, ये छोटा वाला स्क्वायर बॉक्स है। आई थिंक समबडी हैज रेज्ड अ हैंड। ये सोनाली मैम। मैम आपने अभी आपने इंसर्ट वाले से दिखाया, उससे पहले जो आपने वो सिग्मा साइन, सिग्मा साइन है, ये सिग्मा साइन जो है, हाँ 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 जी, हाँ जी, रिपीट यहाँ से, हाँ। ठीक है। और उसके बाद ये स्मॉल स्क्वायर बॉक्स है, उसको ड्रैग कर लीजिए, यू विल गेट सेम फॉर्मूलाज इन ऑल द सेल, और आपका एवरेज हर एक रो का निकल आया उसी के अकॉर्डिंग। दिस इज फॉर एवरेज। सेम इज विथ मिनिमम, इक्वल्स टू साइन, MIN, मिन, मिनिमम का ये वो शॉर्ट फॉर्म है। देन आपने ब्रैकेट लगा लिया, आपने रेंज सेलेक्ट कर लिया, कहाँ से मिनिमम लेना है, क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया। 34 वाज द मिनिमम नंबर इन द रेंज, तो ये मेरे पास आ गया। इफ यू वांट टू गो बाय इंसर्ट दिस सिग्मा साइन, यहाँ से गए, मैंने मिनिमम ले लिया, मैंने रेंज सेलेक्ट कर लिया और एंटर कर दिया। सिंपल। You can go from insert tab also, function, average, select the range, enter, आ गया मिनिमम नंबर। तो मैंने 80 भी सेलेक्ट कर लिया था, मेरा सिलेक्शन गलत था इसलिए ये ले लिया। लेट मी डिलीट एवरीथिंग। इक्वल्स टू मिनिमम कर रहे थे, मिनिमम। हाँ, मैंने रेंज गलत ले लिया था मैम, इसलिए वो 80 दे रहा था, कि मुझे रेंज यही तक लेना था ना, टेस्ट तक। 67 इज द मिनिमम नंबर। ठीक है, अब मुझे पूरे ना क्लास का नंबर चाहिए, मैंने ड्रैग कर लिया नीचे तक, ये ड्रैग हो गया। ठीक है, उसी तरह मैक्सिमम भी है, इक्वल्स टू मैक्स, ब्रैकेट, select the range, bracket close, enter. You can go by all the ways, you can insert. फिर उसके बाद आता है काउंट। काउंट जो फंक्शन होता है
वो आपके नंबर्स को, जितने नंबर्स हैं, वैल्यूज, जो नंबर वैल्यूज हैं, उनको काउंट करता है। जैसे मैंने इज इक्वल टू किया, काउंट लिखा और ब्रैकेट लगाया, और मैंने ये पूरा नाम वाला कॉलम भी काउंट कर लिया। ये देखिए, ये पूरे काउंट, पूरा रेंज मैंने ले लिया, कितने नंबर्स मेरे इनपुट हुए हैं ये काउंट करके बता देगा। 8 कॉलम में नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 दे दिया। ये सब में अगर हमने ड्रैग करके ये फॉर्मूला लगा दिया है तो सब में 8 आ जाएगा, क्योंकि सब में 8 नंबर्स हैं। अगर मैंने गलती से भी एक नंबर यहाँ से डिलीट कर दिया तो वो 7 हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली अपडेट करता रहता है। अब उसके बाद आता है काउंट ए फंक्शन। काउंट ए फंक्शन अभी क्या था, जब मैंने काउंट लगाया तो आदित्य जो नेम वाला था उसको भी मैंने इसमें लिया था, बट उसने नेम वाला नहीं लिया, उसने सिर्फ नंबर वैल्यूज लिए। अब यहाँ पे क्या होगा, जब मैंने काउंटा लगाया या काउंट ए लगाया, काउंट ए ब्रैकेट, और मैंने जब ये नेम वाला कॉलम भी साथ में ले लिया, तो ये न्यूमेरिक वैल्यू भी और टेक्स्ट वैल्यू भी दोनों को इंक्लूड करता है काउंटिंग में, और इसने बोला 10 है। एक मिनट में रेंज फिर से दे रही हूँ, इज इक्वल टू COUNTA ब्रैकेट, now I've taken, अच्छा I have taken count 1 also, तो इसने 10 ले लिया। ठीक है, 8 तब लिया था जब इसको नहीं काउंट किया था। अब इसने 9 ये वाले भी ले लिए, काउंट वाला भी लिया, और साथ में आदित्य को भी ले लिया और 10 प्रेजेंट कर दिया। कैन यू सी हियर? नाउ कम्स काउंट इफ। उसके बाद है काउंट इफ। काउंट इफ एक कंडीशन को बताता है। हमने ये रेंज लिया, हमने ये रेंज ले लिया, ये मैंने यहां तक के नंबर्स को ले लिया, कॉमा लगाया, उसके बाद मैंने कहा ग्रेटर देन, इन्वर्टेड कोट्स में रख के हमने लिखा ग्रेटर देन 40। इसमें जो नंबर है उसको बताओ। ये बताया कि 3 नंबर्स उस रेंज में ग्रेटर देन 40 हैं। ये देखिए 45, 46, 90, 3 नंबर्स बड़े थे, 34 छोटा था, इसलिए उसने 3 नंबर लिया। अब अगर हम यही फॉर्मूला नीचे तक ले जाते हैं ड्रैग करके, तो वो हर उसमें रोज में जितने नंबर जैसे हैं उसने बता दिया यहाँ पे काउंट करके, सेम कंडीशन के साथ। हम इसमें ये भी कर सकते हैं, ग्रेटर देन के जगह पे हम लेस देन भी लिख सकते हैं, लेस देन 90, लेस देन 60। जैसे ही हमने फॉर्मूला लेस देन 60 लगाया तो देखिए 3 नंबर थे लेस देन 60। क्लियर है काउंट इफ? कोई डाउट? मैम काउंट इफ एक बार फिर से बता दीजिए। काउंट लगाया मैम, काउंट फंक्शन, काउंट के बाद रेंज लगाया, ठीक है। ये देखिए इज इक्वल टू काउंट इफ, उसके बाद रेंज लगाया, कहां से कहां तक मुझे देखना है। यस मैम। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये दिखाया, ठीक है, और मैंने यहाँ फिर कॉमा लगाया। अब एक कंडीशन देंगे इन्वर्टेड कॉमर्स में कि ग्रेटर देन 90 जितने नंबर्स हैं उसको मुझे काउंट करके बता दो। इंटर कर दिया, सिर्फ ग्रेटर देन
ग्रेटर देन 90 एक ही नंबर था, दैट वाज 215। तो इसने कहा 1। आ गया सही? इस पूरे रेंज में एक नंबर था जो 90 से बड़ा था। Yes. क्लियर है? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. ओके ना, आफ्टर काउंट ये उसके बाद अब हमें स्टूडेंट की ग्रोथ देखनी है कि स्टूडेंट मेरा उसमें क्या चेंजेस आ रहा है, वो इम्प्रूव कर रहा है या इम्प्रूव नहीं कर रहा है। तो हम एक वो लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड ट्रेंड लाइन। इसको कहते हैं ट्रेंड लाइन। उसके लिए क्या हम यूज करते हैं, इज इक्वल टू स्पार्क लाइन ब्रैकेट। अब स्पार्क लाइन में हम वो पूरे बच्चे का मार्क्स टेस्ट 1 से लेकर के टेस्ट 4 तक पूरा रेंज ले लिया और ब्रैकेट बना दिया, एंटर कर दिया। नाउ यू कैन सी उस बच्चे की ग्रोथ कैसे थी। पहले तो एकदम फ्लैट चल रहा था, फिर इम्प्रूव किया एंड देन ही केम डाउन। कैन यू सी? पहले तो फ्लैट था, यानी 45 और 46 फ्लैट हुआ, फिर उसके थर्ड टेस्ट में 90 नंबर आए तो ये ऊपर गया, एंड देन 34 आ गया, अगेन ये डाउन हो गया। इस तरह से करके हम सारे बच्चों की ट्रेंड लाइंस देख सकते हैं बना करके, बच्चों में क्या इम्प्रूवमेंट है, किस तरह का है। तो ये पिक्टोरियल जो रिप्रेजेंटेशन है इसका लाइन वाले में, तो यू कैन इजीली मेक आउट कि बच्चे की ग्रोथ हो रही है या बच्चा नीचे जा रहा है हमारा। वी हैव टू वर्क ऑन दैट चाइल्ड। मैम ट्रेंड लाइन का फॉर्मूला एक बार बताएंगे मैम प्लीज? इज इक्वल टू स्पार्क लाइन, SPARK, स्पार्क LINE, स्पार्क लाइन, फिर कर वही राउंड ब्रैकेट, शिफ्ट दबा करके 9 के ऊपर है राउंड ब्रैकेट, एंड देन सेलेक्ट द रेंज। सारे चारों टेस्ट के मार्क्स मैंने सेलेक्ट कर लिया, एंड देन आई हैव क्लोज द ब्रैकेट। क्लियर? ठीक है, मैं आगे बढ़ूं। बस एक टॉपिक और बच गया, दैट इज चार्ट, एंड दैट इज वेरी सिंपल। ये मेरे पास शीट बनी हुई है, ठीक है, आपके पास भी शीट बनी होती है। आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखना है कि बच्चे का ग्रोथ कैसी है। पहला तो मैंने स्पार्क लाइन मैम, कैन वी डू इट इन आवर नेक्स्ट क्लास? मैम बस ये लास्ट टॉपिक है, खत्म हो जाएगी। ओनली 5 मिनट्स, वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है आपको। हेलो। हाँ जी, हेलो हेलो। अगर लेट हो रहा है तो मैं छोड़ देती हूँ। प्लीज शो योर। हेलो मैम। हाँ रिति मैम। मैम कल करें, आज इट्स टू लेट मैम, आई हैव टू गो समवेयर। ठीक है मैम, प्लीज एवरीबडी इज, आप चले जाइए, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा मैम। अगर सब लोग राजी हो तो मैं 5 मिनट और लूंगी और खत्म कर दूंगी। रिति मैम यू कैन लीव। नहीं, फिर मुझे नहीं आएगा तो? आ जाएगा, रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। अब जैसे रिकॉर्डिंग रहेगा मैम क्लास में? एकदम रहेगा, अभी के पहले दिन की भी रिकॉर्डिंग है। अदरवाइज आई विल गिव यू ट्रबल मैम। ओके, आई एम रेडी टू टेक द ट्रबल। थैंक यू मैम, थैंक यू। रिति मैम, अदरवाइज सोनल मैम इज देयर ना? ठीक, हमने रेंज सेलेक्ट किया। आई वेंट टू चार्ट ऑप्शन। देखिए यहाँ पे चार्ट ऑप्शन है, हम चार्ट में चले गए। मैंने जैसे ही चार्ट क्लिक किया, राइट साइड में एक पैनल आ गया, इसमें हमें उस बच्चे का नाम
और पिक्टोरियल ग्राफ में बता दिया कि फर्स्ट टेस्ट में उस बच्चे का मार्क्स और उसकी ग्रोथ क्या थी। अब मुझे अगर कंपेयर करना है फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट में, पहले तो स्पार्कलाइन के थ्रू हमने किया, अगर मुझे कंपेयर करना है ये दो टेस्ट को, उस बच्चे को और उस दो टेस्ट को, तो हमने दोनों टेस्ट के मार्क्स को लिया। हमने ये चार्ट का जो कीबोर्ड यहाँ पे जो आइकन है वहां से भी गए, हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया लाइन चार्ट एंड वी कैन इजीली सी। यहाँ पे देखिए ये है लीजेंस जो बताता है कि टेस्ट 1 ब्लू कलर के लाइन से है, टेस्ट 2 रेड कलर से लाइन से है। आदित्य जो बच्चा है वो टेस्ट 1 में 75 के ऊपर मार्क्स था उसका, बट टेस्ट 2 में उसका 50 के नीचे मार्क्स गया। तो यू कैन सी दैट चाइल्ड इज डिटोरिएटिंग। फर्स्ट टेस्ट से दूसरे टेस्ट में उसका मार्क्स नीचे आ गया। फिर दूसरा है अनु, उसका आपने देखा कि 75 के नीचे मार्क्स था, बट सेकंड टेस्ट में 75 के ऊपर है। मैम If you want- बोलेंगे ये हाँ चार्ट जी, मैम। ऑप्शन हमने कहाँ से लिया? बिल्कुल मैम, ये देखिए ये मैंने रेंज सेलेक्ट किया। मुझे दो टेस्ट का मार्क्स अगर रिव्यू करना है तो मैंने दो कॉलम को ऐड किया। अगर मुझे यही 3 टेस्ट के मार्क्स देखने हैं तो मैंने 3 को सेलेक्ट किया। एक ऑप्शन तो यहाँ पे है इंसर्ट एंड चार्ट, थैंक यू। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे, यू कैन सी ऑन द बार, यहाँ पे हमने इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये चार्ट का सेटअप आ गया। आई डोंट वांट दिस चार्ट, so I can go and select another chart from here. There are different charts available. You can select it according to your need. आपको जो आपके लिए सजेस्टिव होगा वो आपको दिखा देगा, ये सजेस्टेड है। इस तरह के डेटा में आप इस तरह के चार्ट्स ले सकते हो, ठीक है। मैंने ये चार्ट ले लिया, कॉलम चार्ट। अब कॉलम चार्ट लेने के बाद मुझे थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना है इस चार्ट का, तो मैंने एडिट पे क्लिक किया। मैं नीचे आई कस्टमाइज पे, मैंने इसकी सीरीज पे क्लिक किया। मैं यहाँ पे टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 देख सकती हूँ। लाइन, अगर मुझे लाइन का कलर चेंज करना है तो आई कैन चेंज द लाइन कलर्स। देन आई विल मूव टू लीजेंस। लीजेंस में भी हम चेंज कर सकते हैं। लीजेंस को मुझे ऊपर चाहिए, मुझे नीचे चाहिए, I can check it and put it according to my need. उसके कलर्स, मुझे टेक्स्ट के कलर्स चेंज करने हैं, मैंने टेक्स्ट के कलर चेंज कर दिया। मुझे बोल्ड में चाहिए, मैंने बोल्ड कर लिया। उसके फॉन्ट साइज को चेंज कर दिया। मुझे ये लेफ्ट में चाहिए तो मैंने लेफ्ट में रख दिया। टॉप में, बॉटम में चाहिए तो लीजेंस हमारे बॉटम में चले गए। तो यू कैन कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू योर नीड। ये ग्रिड लाइंस है, इसके पीछे जो लाइंस दिख रहे हैं, कैन यू सी दिस? यू कैन टेक द मेजर टेक्स्ट, जो मेजर लाइंस है। इफ यू वांट द माइन्यूट वन यू कैन टेक द थिन लाइंस आल्सो। उसको लाइंस को भी थिकनेस आप बढ़ा सकते हैं एंड यू कैन चेंज द ग्रिड लाइंस आल्सो। अब यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं कि फर्स्ट टेस्ट कलर वाज ब्लू, फर्स्ट टेस्ट में 75 के ऊपर गया, सेकेंड टेस्ट में उसका 50 के नीचे आया, थर्ड टेस्ट में उसका 75 के ऊपर चला गया। सो नाउ आई कैन सी द ग्रोथ इन माय स्टूडेंट। टेस्ट वाइज उसकी ग्रोथ हुई। फर्स्ट में नॉर्मल एवरेज था, फिर बिलो चला गया एंड थर्ड टेस्ट में अबव एवरेज चला गया। इज इट क्लियर मैम? नाउ अभी तो ये टेस्ट जो है जो चार्ट बनाया मेरा वो टेबल के ऊपर है। नाउ आई वांट टू मूव दिस चार्ट ऑन अनदर शीट। तो यू कैन मूव दिस शीट। ये 3 डॉट्स है, यहां से इस चार्ट को मूव कर देंगे तो चार्ट अपने अलग शीट पे आ जाएगा एंड यू कैन सी द चार्ट फ्रॉम हियर। एक पूरे पेज में बड़ा सा चार्ट आपको दिख रहा है। नाउ यू कैन इजिली आइडेंटिफाई। अब चार्ट आपके इस पेज पे नहीं है, यहाँ पे आ गया। क्लियर है? यस बेबी, क्लियर? यस बेबी। पानी पी लीजिए, गला बैठ गया है। पी लिया।
That is all for today. I hope मैं clear कर पाई हूँ. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Yes, ma'am. ठीक है. Now I'm sending a feedback ma'am. form. It is already posted in the classroom also. स्मिता मैम, आपने मॉक टेस्ट भी डाला है क्या इसमें क्लास में? अभी नहीं डाला है मैम. नहीं डाला है ना, वही मेरे को लगा कि डाला है. मॉक टेस्ट में डालूंगी जब सारा चीज कंप्लीट, क्योंकि मॉक टेस्ट जो होता है ना, हाँ जी, वो ओवरऑल आप लोग है ना? ओवरऑल होता है. मुझे एक्चुअली आप दिखाया था तो मैं सर्च करने लगा तो मुझे दिखा नहीं था. आई थॉट कि मैं मिस कर रही हूँ क्या. चलो, आई एम सेंडिंग द लिंक इन द चैट बॉक्स फॉर द फीडबैक. प्लीज फिल इट. इससे आपकी अटेंडेंस भी काउंट हो जाती है कि लास्ट मोमेंट तक कौन था. वैसे तो आई विल टेक द अटेंडेंस शीट आल्सो एंड आई विल गेट इट टू. सो प्लीज फिल द अटेंडेंस शीट. अगर कहीं मेरे से कुछ गलत हुआ हो या नहीं समझ में आया हो तो यू कैन राइट इट. यू आर फ्री टू राइट देयर. आई विल इंक्लूड इन माय मैम आपने कौन सा चार्ट दे दिया? आपने तो वो वाला दे दिया है, डॉक वाला लिंक. ये कुछ और है, ये डॉक है. हाँ, डॉक वाला लिंक दिया जिसमें चिड़िया कुत्ता चिपकाई है. हाँ, वो सुंदर सा डॉगी है. हाँ, मैम मैंने क्लास में जाके फिल कर दिया. ओके, क्लासरूम में भी है, मैं दे रही हाँ हूँ. मैम, हम लोग वहीं से कर लेते हैं. आप मत भेजो, हम लोग कर लेते हैं क्लास से. डोंट वरी. स्मिता मैम, हाँ जी मैम. फंडामेंटल ट्रेनिंग जो आपने शेयर, सॉरी, जो फंडामेंटल ट्रेनिंग जो शेयर किया है ना, मैं उसको ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ. पर्सनल अटेंडेंस की लिंक दीजिए ना प्लीज. जी जी जी, मैं एक बार फिर से ट्राई अटेंडेंस करती की हूँ. लिंक मैम आपके पास नहीं आएगी. फीडबैक मैंने डाल दिया, फीडबैक आप भर दीजिए. जैसे ही मैं मीटिंग ओवर करूंगी आई विल गेट द अटेंडेंस. इट विल बी